नमस्कार साथियों। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आने वाले चुनावों में बीजेपी की हार निश्चित है। क्योंकि हार निश्चित है, प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी ने ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग भारी मात्रा में शुरू कर दिया है। राजस्थान में हुआ है और पिछले कुछ दिनों में आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी ये दुरुपयोग भारी मात्रा में की जा रही है। इसके बारे में विस्तार से हमारे महासचिव संगठन के केसी वेणुगोपाल जी और जाने माने हमारे वकील और सांसद डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी इसके ऊपर आपको पूरी जानकारी देंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये बिल्कुल साफ दुरुपयोग है, ये प्रतिशोध की राजनीति है और इसलिए अपनाया जा रहा है क्योंकि बीजेपी की हार बिल्कुल निश्चित है। इन दोनों राज्यों में भरोसा बरकरार है, फिर से कांग्रेस सरकार है। पहले मैं वेणुगोपाल जी से गुजारिश करूंगा और उसके बाद में विस्तार से सिंघवी साहब आपको इस केस में, महादेव ऐप केस के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। वेणुगोपाल जी। Thank you, Jairam ji, Singhvi ji. Whenever there is elections, the main weapon for BJP become Enforcement Directorate or Income Tax Department. We saw in Karnataka elections, during the election itself, they raided more than 100 Congress candidates. Now almost 8-9 months over. Nobody knew about the follow-up of that raids. After the elections, Congress got 136 seats and we are now ruling Karnataka. Now all the states, 5 states, including Mizoram, Chhattisgarh, Rajasthan, Madhya Pradesh and Telangana, public mood is very clear. In all these states, Congress is going to form the government. Whenever BJP sees the ground is slipping from their feet, they have only one weapon with them, ED. Chhattisgarh, for example, Chhattisgarh and Rajasthan, our government was so popular. The scheme of these two governments are reaching to the common people of the two states. And the entire state is now praising about the Congress government's welfare activities. They have only one target: to damage the image of the Chief Minister of Chhattisgarh and to damage the image of Chief Minister of Rajasthan. They are continuously targeting Bhupesh Baghel, who is coming from the grassroots level and become one of the most popular Chief Minister of this country. They know that this election is going to be one-sided. You know that the background of Bhupesh Baghel ji, a person coming from the OBC background and become the pride of the state. Everywhere you people are going to the Chhattisgarh, wherever you are talking to the people of, common people of Chhattisgarh, they used to praise about the Bhupesh Baghel's government's programs. Therefore, this is a clear-cut conspiracy headed by the Prime Minister of India to tarnish the image of the Bhupesh Baghel and the Congress government for winning these elections.
Actually, we are surprised by hearing that now their code of conduct is enforced in Chhattisgarh and all the states. Agencies are there. In every doorstep of Congress leaders and of bureaucrats, agencies are there. How can this money come without their knowledge? And this Singhviji will tell in detail about the Mahadev app. You know everything on that. But we have a simple question to the central government. What stop you taking action against this Mahadev app? Basically, it is operating from Dubai also. It is clearly in your domain. Why are we not taking action against this app? On the other side, our government, Chhattisgarh government, we can narrate you how many actions, how many cases, how many arrests we have done in Chhattisgarh on this issue. This is a clear-cut strategy to try to damage the image of Chhattisgarh Chief Minister. Congress party is categorically wishing to say that the people of Chhattisgarh will give a befitting reply on this malicious campaign by using ED. Interestingly, ED is saying, the ED's official statement is saying some so-called arrested person given a statement that Chief Minister took this money, but all has to be investigated. Without investigation, without enquiry, Enforcement Directorate is taking a statement of an arrested person and giving it to the public during the course of the election. Whether it has happened before? Therefore, this type of tactics is not going to serve the purpose. People are not fools. They know about the BJP's tactics. In Rajasthan, we saw that you are raided Chief Minister's son's house. You are raided our PCC President's son's house. Nothing had been found out. But on the other hand, your own officer caught by the state police on the issue of bribe. Therefore, this is going to be very clear that they are in panic situation. They know that they are losing the ground. They know that they are losing the states. That is why they are creating. But we are very sure and we are very clear that we will go to the people. Definitely people of Chhattisgarh know about Baghel ji. Chhattisgarh, people of Rajasthan know about Ashok Gehlot ji. We will take this issue to the court of the people. I would request Singhvi ji to elaborate. वेणुगोपाल जी, जयराम जी, दोस्तों, जैसा कि मेरे दोस्तों ने कहा, ये सर्वविदित है कि छत्तीसगढ़ में बुरी हार की तरफ अग्रसर है बीजेपी। पूरी दुनिया जानती है, वो जानते हैं, और हर मापदंड से ये सर्वविदित है। यह भी सर्वविदित है कि ईडी के साथ साझेदारी कह लीजिए, पार्टनरशिप, गठबंधन कह लीजिए, सहयोग कह लीजिए, ईडी के साथ साझेदारी, गठबंधन और सहयोग बीजेपी सरकार और बीजेपी पार्टी का तीव्रता से बढ़ रहा है जैसे जैसे वो हार उनके पास आ रही है। लेकिन ऐसे मापदंडों के बाद भी इतनी घृणात्मक स्थिति पहुंचाएगी ये सरकार बीजेपी वाली और बीजेपी पार्टी, ये मैं समझता हूं इस देश ने सोचा नहीं था। और ये क्यों घृणात्मक बताना चाहता हूं आपको। जो उन्होंने खुद ने कीर्तिमान और मापदंड और मील पत्थर स्थापित किए हैं, उनसे भी आगे जाता है ये केस। ये इसमें एक मजाकिया बात यह है कि 1.5 वर्ष पहले जो पहला कोतवाल है, यानी छत्तीसगढ़ पुलिस, वो पहला कोतवाल जांच शुरू कर देता है
अभियुक्त बना देता है, बहुत सारी चीजें जब्त कर लेता है, और उसके 1.5 साल बाद चुनाव के बीच में 4 दिन बचे हैं पहले प्रसंग के और 15 दिन में सब कुछ ओवर है छत्तीसगढ़ में, उसके 1.5 साल बाद दूसरा कोतवाल छलांग लगाता है केंद्र सरकार के निर्देश पे, यानी ईडी, और कई कर्मचारियों के ऊपर प्रताड़नाएं करता है, जो बताने वाला हूं मैं आपको किस प्रकार की प्रताड़नाएं। तो ये जाहिर है कि ऐसे ही नहीं बनाया गया है फर्जी मामला, ऐसे ही नहीं कस रहे हैं नकेल, क्योंकि वो जानते हैं कि जीत रहे हैं भूपेश बघेल। मैं आपको इसके बारे में बताऊं साहब, हम आपको देने वाले हैं अभी दस्तावेज, जिसमें एक चार्ट है पीछे। ये दुर्भाग्य की चार्ट है और रोचक चार्ट भी है। 2022 मार्च से लेके अभी तक रायपुर ले लीजिए, दुर्ग ले लीजिए, बिलासपुर ले लीजिए, जगदलपुर ले लीजिए, अंबिकापुर ले लीजिए, मैं आपको डिटेल्स नहीं दे रहा हूं, सब तरफ से लगभग 450 लोगों को गिरफ्तार किया है। किसने किया है? छत्तीसगढ़ पुलिस ने। मैंने कहा ना, पहला कोतवाल। 72 केसेस रजिस्टर हुए हैं पूरे प्रदेश में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। अब मैं उसकी सूची नहीं दूंगा आपको, लेकिन जो टोटल है, जो सामूहिक रूप से है, 191 लैपटॉप, 850 मोबाइल फोन, 200 से ज़्यादा एटीएम कार्ड्स, 1.5 करोड़ रुपये, और उसके अलावा बहुत सारे अंचल एसेट्स, कैश, 16 करोड़ से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स के रुपये, इत्यादि इत्यादि। ये सब पहले बात खत्म हो गई, तहकीकात हो गई, जब्त हो गए, कानूनी कार्रवाई हो गई। उसके बाद क्या छत्तीसगढ़ पुलिस अखिल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अधिकार क्षेत्र रखती है, जुरिस्डिक्शन होता है? क्या वो दुबई जाने देगी केंद्र सरकार उनको? अगर दुबई जाने देती है केंद्र सरकार, तो छत्तीसगढ़ सरकार वहां भी जाने को तैयार है। क्या वो लेटर्स रेगुलेटरी कर सकते हैं, बुला सकते हैं, एक्सट्रेडिशन की बात कर सकते हैं? तो 1.5 साल में जब ये सब कर लिया, उसके बाद 6-8 महीने से ईडी ने शुरू कर दिया ये सब, उसको भी हो गए 6 महीने से ज्यादा। लेकिन प्रसंग तो अभी रुकना है, वो प्रसंग आएगा जब चुनाव चल रहे होंगे। तब जब चुनाव चल रहे हैं तो आपको बताया जाता है एक और बहुत ही बखूबी एक कहानी, कि हमने पकड़ा है ऐसे लोगों को जो वहां से रुपया लेके अभी चुनाव के वक्त चुनावी माहौल में रुपया देने आ रहे हैं। कभी आप सोच सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बॉडी कस्टम्स के जो बॉर्डर्स हैं और भारत की जो सीमाएं हैं, उसको छत्तीसगढ़ पुलिस करती है? कैसे हुआ ये? क्यों हुआ ये? कब हुआ ये? या सिर्फ इसलिए हुआ कि 4 दिन बाद पहली वोटिंग है और 15 दिन बाद सब वहां खत्म है चुनाव? और एक कोरियर का व्यक्ति एक वक्तव्य देता है, आपको मालूम है ये वक्तव्य कैसे निकाले जाते हैं ईडी द्वारा, और उस वक्तव्य के आधार पे आप पूरी कहानी बनाते हैं, और उसके बाद सबसे दुर्भाग्य की बात, सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। कहानी बनाने के बाद सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। क्या आप सोचते हैं कि गधे हैं लोग या घास खाते हैं? उनकी आप इंटेलिजेंस को अपमानित कर रहे हैं कि हम पहले आरोप लगा देंगे, चुनाव के वक्त हम रेड कर देंगे, एक व्यक्ति का हम अभियान वक्तव्य ले लेंगे और बाद में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। जो इन्वेस्टिगेशन छत्तीसगढ़ पुलिस ने करके आपको 1.5 साल पहले दे दिया है, 1 साल पहले दे दिया है। कभी आपने देखा है ऐसा? और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रताड़नाओं के बारे में। ये मामले वैसे बताऊं मैं आपको, छत्तीसगढ़ के कई अफसरों के ऊपर इस चुनाव से पहले, मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, कई मामले उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं। प्रताड़नाएं कई जगह हुई हैं और लगभग 10 ऑर्डर या 8 ऑर्डर आदेश उच्चतम न्यायालय के आंतरिक रूप से स्टे ऑर्डर्स इन व्यक्तियों को मिले हैं, अफसरों को, छत्तीसगढ़ के अफसरों को, भूपेश बघेल सरकार के अफसरों को। उसमें हम पेश भी हो रहे हैं। अगली तिथि उसकी 22 नवंबर है। अब जो ये नाम आपको बताए जा रहे हैं, वो जानबूझकर बिना किसी तथ्य के वो लोगों के नाम लिए जा रहे हैं जो बघेल सरकार के काम में असिस्टेंस देते हैं, मुख्यमंत्री के ऑफिस को सहायता देते हैं। पॉलिटिकल एडवाइजर विनोद वर्मा, मनीष बंछोर, आशीष वर्मा, विजय भाटिया इत्यादि इत्यादि ये नाम है।
इनके बारे में अभी तक एक तथ्य चार्जशीट पे नहीं दिया गया है। इनको बताया नहीं जाता है कि तुम अभियुक्त हो या साक्ष्य के रूप से बुलाए जा रहे हो, एज ए विटनेस और एज एन एक्यूज्ड। विनोद वर्मा के यहां रेड करते हैं तो वो कुछ ऐसी चीजें लेते हैं जिसकी रिसीट्स उठाई जाती हैं, 16 साल पुरानी परचेजेज हैं, 16 इयर्स। विजय भाटिया के यहां जाते, वो खुद अस्पताल में हैं, उनकी बीवी बीमार हैं, रेड के दौरान उनको अटैक होता है, फिर भी उनकी जांच की जाती है। उसके बाद भाटिया जी मुंबई के अस्पताल में भर्ती होते हैं, वहां भी जाकर प्रश्नोत्तर होता है। ये ईडी है, इलेक्शन डिपार्टमेंट है बीजेपी का, या क्रूरता का एक द्योतक है? और ये सब होता है लगभग एक ऐसी चीज के विषय में जो 1-1.5 साल पहले से चल रही है। मैं हिंदी में अपनी बात संक्षिप्त में खत्म करने से पहले ये कहना चाहूंगा कि आज ये प्रवर्तन निदेशालय जिसको कहा जाता है, जिसने अपनी पूरी विश्वसनीयता खो दी है, खत्म कर दी है, वो आज झूठ का कार्यालय है, प्रवर्तन कार्यालय नहीं है। पूरी तरह से झूठ का पुलंदा है। तोता अगर किसी को आप कह सकते हैं तो तोता ये है। और आप तोते की पूरी प्रक्रिया देख रहे हैं। जो मुद्दे कानून के उठाए गए हैं उच्चतम न्यायालय में, वो अभी तक लंबित हैं, छत्तीसगढ़ के विषय में लंबित हैं। 22 तारीख को उनकी सुनवाई होने वाली है अन्य केसेस में। उन मुद्दों में ये मुद्दा भी है कि आप किसी को बुलाते हैं, बताते नहीं हैं कि वो साक्ष्य है या अभियुक्त है, और अपनी मनमर्जी से आखिरी समय पे उसको अरेस्ट करें या न करें। आप किसी के पास कोई रुपया आ जाए, उसको कोई मतलब नहीं उस रुपये से कि कैसे उसने मनी लॉन्ड्रिंग की, कुछ उसका इस्तेमाल किया। सिर्फ रुपया आने से, ABC से ट्रैवल करके D के पास आए तो उसको आप मनी लॉन्ड्रिंग मान लेते हैं। बेल के प्रावधान को आप डिस्टॉर्ट करके लागू करते हैं। ये सब मुद्दे छत्तीसगढ़ के विषय में उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं। हम यही कहेंगे कि कानून सबसे बड़ा होता है। अगर इनको किसी का भय नहीं है तो उच्चतम न्यायालय इनको कानून सिखाएगा, हमें इसका विश्वास है, इसकी आशा है। और इस प्रकार से चुनाव की लेवल प्लेइंग फील्ड को खत्म करना, मैं समझता हूं हर संवैधानिक अथॉरिटी को, संस्था को इसका नोट लेना चाहिए। चुनाव आयोग का भी इसमें अधिकार क्षेत्र बनता है कि चुनाव की जो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए उसको ये बराबरी का नहीं रहने दे रहे हैं। इस मामले में हम भर्त्सना करते हैं और सबसे इसका अच्छा उत्तर आने वाला है छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन से, जो आपको निकट भविष्य में मिलेगा। इंग्लिश और यू साथियों, मैं सिर्फ यही कहूँगा, उसके बाद आपके सवाल भी लेंगे, कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी भुखलाई हुई है, घबराहट में है, अत्यंत परेशानी में है, क्योंकि उन्होंने साफ देख लिया है कि छत्तीसगढ़ की आम जनता स्पष्ट रूप से बहुमत कांग्रेस को ही देने वाली है। इसीलिए आखिरी दिनों में ईडी का भरपूर दुरुपयोग किया जा रहा है। और अभी अभी सिंघवी साहब ने आपको बताया है कि मार्च 2022 से लेकर छत्तीसगढ़ सरकार कार्रवाई कर रही है। इसकी जानकारी आपको दी जाएगी विस्तार से। जो कार्रवाई की गई है छत्तीसगढ़ की सरकार से, छापे मारे गए हैं दिल्ली में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में। पर दुबई में तो हम छापा नहीं मार सकते ना। दुबई में तो सिर्फ केंद्र सरकार कार्रवाई कर सकती है। एक मामले में जो अभी लोकसभा एथिक्स कमेटी के सामने है, उसमें तो खूब दुबई की बात होती है। पर इस मामले में, महादेव ऐप के बारे में, दुबई में जो कार्रवाई करनी है, अभी तक केंद्र सरकार ने उसके ऊपर कुछ किया नहीं है। हालांकि ऑनलाइन बेटिंग को 28% GST भी लागू कर दिया है। इसको कानूनी दर्जा दिया गया है। ये गैर कानूनी नहीं है, इसको कानूनी बना दिया है और उसके ऊपर 28% GST भी लगाया दिया। तो ये बिल्कुल साफ है। और कल आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, बीजेपी सरकार ने अपनी घोषणा पत्र निकाला है छत्तीसगढ़ में। जो रेवड़ी की आलोचना करते थे प्रधानमंत्री,
जो हमारे गारंटी की आलोचना करते थे ये प्रधानमंत्री, कल हमारे बीजेपी की ओर से जो घोषणा पत्र निकाला गया है वो सिर्फ नकलची घोषणा पत्र है। जो एलपीजी सिलेंडर के बारे में उन्होंने वादा किया है, जो धान की खरीद के मूल्य में वादा किया है, ये तो कांग्रेस ने पहले किया था। और जब हम कर्नाटका में गारंटी पहली बार राहुल जी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था तब खूब आलोचना हुई, और अब कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी होगी धान के मूल्य में या ये एलपीजी सिलेंडर के बारे में। तो ये सब जो ये क्या दिखाता है? घबराहट दिखाता है, बौखलापन दिखाता है, परेशानी दिखाता है। हार निश्चित है, जो भी करें हम डरेंगे नहीं, जो कानूनी कार्रवाई करना है हम करेंगे, चुनाव आयोग को भी हम जाएंगे, क्योंकि ये मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, ये मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का समय है। और जिस तरीके से ईडी ने आरोप लगाए हैं हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के ऊपर और उसके बाद कहते हैं सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन, ये सब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट आचार संहिता का ये उल्लंघन है। चुनाव आयोग में जाएंगे, जो कार्रवाई करनी है न्यायालयों में हम ज़रूर अगले कदम लेंगे। हम डरे नहीं हैं, लड़ेंगे, सत्य हमारे पक्ष में है। और 3 दिसंबर को जनता छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में स्पष्ट तरीके से इनको जवाब देगी। अभी आपके सवाल जो सिंघवी साहब से करना है और वेणुगोपाल जी से करना है आप करिए इस विषय पर प्लीज। देखिए, पहले तो ये निर्णय कर लें मिस ईरानी कि वो क्या वो जाती हैं ईडी डिपार्टमेंट में, या ईडी डिपार्टमेंट के घर आता है ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ये हमको बता दें, कम से कम देश को मालूम होना चाहिए कि जो न कोर्ट में फाइल्ड है, न चार्जशीट में है, न एफआईआर में है, न पब्लिक डोमेन में है, वो सबसे पहले एक बैठे हुए मंत्री को मालूम पड़ जाता है। ये गठबंधन जो मैंने कहा ना, गठबंधन, साझेदारी, सहयोग, ये एक विशेष तरह का है ईडी बीजेपी सरकार के बीच में, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपने दिया है, नंबर 1। नंबर 2, मैं कोई इंडिविजुअल चीज़ों के बारे में जवाब देने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। ये जिनके नाम आप ले रहे हैं या जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, ये 18 महीने पहले केस शुरू हुआ, 450 लोग अरेस्ट हुए, सब दस्तावेज उनके पास हैं। ये 5 दिन में इतनी आवश्यकता हो गई है स्मृति ईरानी जी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की? 5 दिन बचे हैं चुनाव के, 4 दिन पहले वाले प्रसंग के लिए, और 10 दिन में सब खेल पूरा है, ओवर है। स्मृति जी ने ये पहले क्यों नहीं कहा? ये नाम पहले क्यों नहीं आए 2 हफ्ते पहले, 2 महीने पहले? सब समझते हैं, जनता सब जानती है, और जनता को मूर्ख नहीं समझिए। चौबीस अगस्त 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मांग की थी कि महादेव ऐप पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, और ये 2 व्यक्ति हैं जो इनके मालिक हैं, जो ऐप के मालिक हैं, जो उनके नाम है रवि उप्पल और दूसरा है सौरभ चंद्राकर, इनको फौरन गिरफ्तार करना चाहिए। ये मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री 24 अगस्त 2023 को इन्होंने ये मांग की थी। मैं स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहता हूँ, उस मांग का क्या हुआ? आपने मुख्यमंत्री ने जो डिमांड किया था, जो मांग की थी केंद्र सरकार की ओर से, उनको पूरा क्यों नहीं किया अब तक? अभी और कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं। असली बात तो ये है, महादेव ऐप पर आपने प्रतिबंध नहीं लगाया, और ये रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर को आपने गिरफ्तार नहीं किया। संजीव। Sir, you just said that you'll move the election commission because the level playing field is being disturbed.
One, would you also move court, because you've indicated that you may move court. So will you move court against for defamation? Because you said Basically, Singhviji already told that the level playing field for the election is not in this country nowadays. Therefore, definitely we will go to the election commission. Certainly, already Singhviji is already looking for the legal options also. okay. And how would you respond to the BJP's charge that the election campaign of the Congress is being funded through Hawala transactions? However, This is what he's alleged. the entire election fund circulated by the BJP in all these states, everybody know that we are starving for funds, brother. Basically, our candidates are starving for funds. And just recently, 1 day ago, 2 days ago, the Supreme Court has told you in detail opaque, non-transparent, one-sided manner in which all these funds are used for election by the BJP. How do they come? Which electoral bond? Can you imagine that in countries 60% plus funds only by electoral bond go to one party and all the other 25-30 parties are within the 40%? ये आपको अभी 2 दिन पहले उच्चतम न्यायालय के प्रश्नोत्तर में आपने सुना है कि चुनाव के लिए पैसों का इस्तेमाल दुरुपयोग कैसे किया जाता है, इलेक्टोरल बॉन्ड में और एसबीआई के जरिए कौन किसको कितना देता है, उसके ऊपर किस प्रकार का दुष्प्रभाव पड़ सकता है, और सबसे रोचक कि पूरे देश में एक पार्टी को औपचारिक आंकड़ों के आधार पर, ये मेरे या वेणुगोपाल जी के, जयराम रमेश जी के आंकड़े नहीं हैं, औपचारिक पब्लिश्ड आंकड़ों में 60% उनको मिलता है और बाकी सब 20, 25, 30 पार्टियों को 40% मिलता है, और अब वो बोल रहे हैं कि हम हवाला से रुपए ले रहे हैं। जयराम जी, मेरा सवाल ये है कि जो ताज़ा मामला आया है, इसके बाद बीजेपी हमलावर है, एक नई राजनीतिक पिच तैयार हुई है, क्योंकि चुनाव जिस तरीके से चल रहा था उसमें अलग अलग मुद्दे थे, अलग अलग विषय थे, लेकिन इस बीच ये जो मुद्दा उठा है इसका जवाब देना बहुत मुश्किल हो सकता है। चुनावी टाइमिंग में अपनी पिच पर लिया ये बीजेपी, ऐसा लगता है। देखिए, एक प्रकार से तो अच्छा किया कि बीजेपी और सरकार ने ये मुद्दा लिया, क्योंकि इस मुद्दे के विषय में जो हमने आपको अभी बताया है, 1.5 साल पुराना छत्तीसगढ़ का मुद्दा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इन्वेस्टिगेट किया है, इतने अरेस्ट और जब्त और छापे किए हैं। मुख्यमंत्री ने आज से 3 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। स्मृति ईरानी जी, एक सिटिंग मंत्री को वो तथ्य पता हैं जो न चार्जशीट में है न एफआईआर में है। ये सब अच्छी बात है, क्योंकि इससे हम जनता जनार्दन के सामने उनका पर्दाफाश कर पा रहे हैं। तो जो चीज़ को आप समझते हैं कि आक्रमण है उनके बारे में, वो उनको खुद को एक्सपोज करता है। और ये जो वोटिंग आने वाली है 4-5 दिन में, इसमें आपको इसका सीधा प्रभाव मालूम पड़ेगा, क्योंकि लोग इस झूठ कार्यालय को समझ गए। Actually, Jairam ji already told. Chhattisgarh police has conducted raids in Madhya Pradesh, Odisha, Delhi and other states from July 2022 till October 2023. Did the center conduct any such move, any much such raid? Chhattisgarh police issued a lookout notice against the AAP masterminds on July 2023. Has the center made any attempt to arrest the masterminds? Chhattisgarh government that has registered more than 70 cases, made more than 450 arrests. Have you made any single arrest? Before this, some operation last evening, did the ED made any seizures? No. There was actually main culprit of this Mahadev is you. We are investigating these cases, we are arresting the people culprits. But on the other hand, whenever Chhattisgarh government also requested about the ban of Mahadev AAP, you are keeping totally silent. Basically, who get benefit? Mahadev AAP get benefit from whom? Not from the Chhattisgarh government, from the central government. This is basically one thing I have to tell, that they know that Chhattisgarh is going to be a one-sided election. Everybody know about that.
Now that they are taking the last weapon to try to tarnish the image of the Chhattisgarh Chief Minister, which never going to happen. We are really proud of that. We are now talking about the caste census. We are now talking about the OBC upliftment. We are really proud that there is a Chief Minister, Bhupesh Baghel ji, who is most popular in Chhattisgarh on governance. This target of BJP is not going to be fulfilled. ये सोचने वाली बात है कि बीजेपी ने कांग्रेस के 2 ओबीसी मुख्यमंत्री को निशाना बनाया है, एक नहीं, दोनों को बनाया है, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में। और दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में बीजेपी मुद्दाहीन है, कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि जो जन कल्याणकारी परियोजनाएं हैं पिछले 5 साल से जो कांग्रेस सरकार ने लागू की है छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, ये सफल हुए हैं। जनता ने इसको स्वीकारा है, उसी के आधार पर हम जनादेश मांग रहे हैं और जनादेश मिलेगा। और आखिरी वक्त पर प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों की एक ही रणनीति है, बदनाम करो, कांग्रेस नेताओं को बदनाम करो, झूठे इल्जाम लगाओ, ताकि लोगों का ध्यान और कहीं भटक जाए, पर लोगों का ध्यान और कहीं नहीं भटकेगा। वो जानते हैं 5 साल में जो काम किया है कांग्रेस सरकार ने, उसको बरकरार रखना है, भरोसा है, कांग्रेस की गारंटियां हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल जी ने जो कहा है वो करके ही हम दिखाएंगे, जैसा कि इन 2 राज्यों में हमने किया है, अभी कर्नाटका में हम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी हमने गारंटियां दी हैं। तो अभी बीजेपी भी गारंटी शब्द का इस्तेमाल कर रही है, हालांकि वो कह रही है ये बीजेपी की गारंटी नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। तो पहले प्रधानमंत्री यू टर्न के उस्ताद हुआ करते थे, जीएसटी पर यू टर्न लिया, आधार पर यू टर्न लिया, महात्मा गांधी नरेगा पर यू टर्न लिया, अभी नकलची निकले, रेवड़ी की बात की, रेवड़ी की आलोचना की, अभी उनका घोषणा पत्र देखिए, वही गारंटी जो पहले कहते थे ये रेवड़ी हैं, अभी वो मोदी की गारंटी बन गए। तो बिल्कुल हार निश्चित है। और ये सब जो अभी बात उठ रही है महादेव ऐप की, ये सब आखिरी वक्त का ये रणनीति है ताकि कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं को बदनाम करें। ये तो प्रश्न वही है जो आपने अभी पूछा है 2 मिनट पहले, ये आंकड़ा किसने बनाया, किसने पकड़ा, किसको मिला? स्मृति ईरानी जी वही बोल रही हैं जो उनको चिट्ठी पकड़ा देती है ईडी। 508 का एक कौन सा आंकड़ा है? इसका आधार 1.5 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद और 6 महीने के ईडी के दुबई के इन्वेस्टिगेशन के बाद ये आधार है एक व्यक्ति जो कुरियर है उसके वक्तव्य पे। टोटल आधार ये है, उस कुरियर के वक्तव्य को एक सिटिंग कैबिनेट मंत्री दोहरा रहा है। बघेल जी ने कल कहा है कि अगर इस प्रकार का वक्तव्य आप किसी भी प्रभाव दुष्प्रभाव से निकाल लें और उससे कोई वाक्य लिखवा लें तो क्या अगले दिन आप प्रधानमंत्री के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, उसकी जांच करेंगे, उसका कोरोबोरेशन एविडेंस लेंगे, क्या इसमें तथ्य है? ये व्यक्ति 1.5 साल से कहां था, चुप क्यों था? ये व्यक्ति अचानक पैदा क्यों हुआ 4 दिन पहले चुनाव के? ये व्यक्ति ने ये सब क्यों बोला, इससे उगलवाया क्यों गया 4 दिन पहले? लेकिन हाँ, जो उसने उगला वही अगले दिन मंत्री ने उगल दिया। संजय साहब,
न्यूज़ 24 से मैं बोल रहा हूँ सर। जो दिल्ली में शराब नीति को लेकर जो एक मॉडल अपनाया गया ईडी की तरफ से, एक व्यक्ति को वहाँ किंग पिन बनाया गया, उनको सरकारी गवाह बनाया गया, फिर गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ में भी एक व्यक्ति 508 करोड़ का आरोप लगा रहा है, फिर कल को वो सरकारी गवाह हो जाएगा और फिर उसमें कार्रवाई शुरू हो जाएगी। क्या यही मॉडल छत्तीसगढ़ में भी अपनाया जा रहा है? देखिए, मैं अभी छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, लेकिन मॉडल के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैं खुद वकील रहा हूँ इन कुछ केसेस में, और मॉडल बड़ा रोचक है। ये प्रश्न रोचक है, शायद आप लोग नहीं जानते हैं इसमें। एक व्यक्ति, और मैं सिर्फ तथ्यों पे बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं, जो मॉडल की बात कर रहे हैं आप। व्यक्ति ए एक वक्तव्य देता है कि कुछ गलत नहीं हुआ, वही व्यक्ति ए वो वक्तव्य को दूसरी बार दोहराता है, कुछ गलत नहीं हुआ। 6 महीने बाद उसको अरेस्ट किया जाता है, उस व्यक्ति ए को। उसके 6 महीने के अरेस्ट के बाद जब वो गिरफ्तारी में है, तब चौथा वक्तव्य देता है कि मैं अप्रूवर बनना चाहता हूं, और 5वां वक्तव्य अप्रूवर का रिकॉर्ड होने के बाद उसको रिहा कर दिया जाता है। जब माननीय लॉ ऑफिसर अपीयर होते हैं कोर्ट में तो कहते हैं कि हमारे को इसकी बेल अपोज नहीं करनी है। ये 3 व्यक्तियों के साथ हुआ है, लिखित है, तारीखें हैं, वक्तव्य हैं। अब इस मॉडल को आप न कहिए छत्तीसगढ़ मॉडल, न कहिए दिल्ली मॉडल, इसको कहिए मोदी मॉडल, बीजेपी मॉडल, सरकार मॉडल। हालात में है कुछ लोग, तो उसका असर चुनाव पर पड़ेगा, छवि खराब होगी। Our majority will increase. You can see on 3rd, the result will come. We will get maximum majority.